नमस्कार, खबरें जारी न्यूज 24 पर मैं हूं आपके साथ मकसूद खान। उल्टी हो गई सब तदबीरें, कुछ ना दवा ने काम किया। मुकदमा हुआ, पूछताछ हुई, गिरफ्तारी हुई और फिर उन्हें पुलिस रिमांड में भी भेज दिया गया। लेकिन ना तो यूथ कांग्रेस का जोश कम हुआ और ना ही बंद हुई राहुल गांधी की जुबान। मध्य प्रदेश के बाद आज केरल से भी राहुल गांधी ने दो टूक कह दिया। अमेरिका से हुई ट्रेड डील देश की जड़ खोदने जैसी है। अमेरिकी किसानों को भारतीय कृषि बाजार में प्रवेश देना आपराधिक कृत्य है। पीएम मोदी एप्स्टीन फाइल में घिरे हुए हैं और इसीलिए भारतीय किसानों की बलि दी जा रही है। लेकिन कांग्रेस भारत के किसानों को प्रधानमंत्री के हाथों बलि का बकरा नहीं बनने देगी। दिल्ली में यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने ट्रेड डील के खिलाफ जंगी प्रदर्शन किया तो राजस्थान विधानसभा परिसर में कांग्रेस विधायकों ने नरेंद्र सरेंडर के नारे तक लगा दिए। टी शर्ट उतारने के जुर्म में मुकदमा हो गया। पीएम मोदी को कॉम्प्रोमाइज्ड कहने वालों की गिरफ्तारी हो गई और यूथ कांग्रेस अध्यक्ष को भी 4 दिन की पुलिस रिमांड में भेज दिया गया। लेकिन ट्रेड डील के खिलाफ राहुल का तेवर नहीं बदला। किसानों के हक में कांग्रेस के आंदोलन का रथ नहीं रुका। जयपुर में कांग्रेसियों ने ट्रेड डील के खिलाफ नरेंद्र सरेंडर का नारा लगाया तो मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं को बब्बर शेर बताने वाले राहुल गांधी ने केरल के कन्नूर से भी राहुल ने लंबी लड़ाई का ऐलान कर दिया। दलील ये कि ट्रेड डील में देश के किसानों की बलि दी जा रही है और प्रधानमंत्री जो चाहे कर लें, लेकिन कांग्रेस किसानों को बलि का बकरा नहीं बनने देगी। Indian farmers are being sacrificed so that the Prime Minister can protect himself and can protect the foundation, the financial foundation of the BJP. And we are not going to allow the farmers of India and Kerala to be sacrificed by the Prime Minister of India. केरल के कन्नूर में किसान सम्मेलन के मंच से राहुल गांधी ने दावा किया और अमेरिका के साथ ट्रेड डील को किसान विरोधी बताया। दलील ये कि यह समझौता देश की जड़ खोदने जैसा है, ये एक आपराधिक कृत्य है। The Prime Minister of India has signed a deal with President Trump that is like taking a JCB and digging the foundation of our country. And nobody is saying anything. No media is saying anything. And media is not saying anything. Indian farmers have small farms and low level of mechanization. American farmers have massive farms and high level of mechanization. It is a criminal act to allow access to the Indian agricultural market for American farmers. And I can tell you with confidence that no Indian Prime Minister would do this. Allowing American farmers to sell soya bean, corn, fruits in India, no Prime Minister would allow this. Because it is going to destroy the foundation that we have built so carefully. The whole green revolution, the white revolution, these happened because we believed that we needed a foundation built in agriculture. ट्रेड डील को एंटी नेशनल एक्ट बताने वाले राहुल ने किसानों के सामने न सिर्फ फैक्ट्स रखे बल्कि आम लोगों की समझ में आने वाली भाषा में समझाया कि जैसे कोई भी इमारत बुनियाद पर टिकी होती है, वैसे ही खेती किसानी पर ही पूरा हिंदुस्तान टिका है। अगर ये बुनियाद हिली तो पूरा हिंदुस्तान हिल जाएगा। There is a roof in this building, there are pillars in this building, there are walls in this building, but without a foundation it would be impossible for anything to be constructed. And if somebody went to the architect who was building this building and said, build the building without a foundation, the architect would look at him and say, you're a fool. And it's not a complicated thing, it's a simple thing. And just like this building needs a foundation, countries need foundations. Country is not built in the air. A roof cannot be built without walls. Walls cannot be built without the foundation. And yet, the simple fact that our farmers and agriculture is the foundation of India is not understood. Long lectures are given about IT, about everything else. But nobody says
that nothing can be built in India without a foundation, and the foundation is the Indian farmer. And it is not just that the farmer is the foundation. It is that if you do not respect your foundation, you can never build anything. And if there is one problem in our country, it is that the person who produces the foundation, the person who gives his entire life to build the foundation of our country, does not have any respect and any protection. We eat food every day, but we never remember how that food came to our table. Who put that food on our table? We never remember that. So, India can only be successful if our foundation, our farmer, is respected and protected. केरल के कन्नूर से राहुल गांधी ने संसद में खुद को बोलने से रोके जाने का प्रसंग सुनाया और ये भी बता दिया कि आखिर सत्ता पक्ष उन्हें रोक क्यों रहा था। दावा ये कि अभी 35 लाख एप्स्टीन फाइल्स जारी होना बाकी है और पीएम मोदी उसमें घिरे हुए। In the president's address in parliament, I started giving my speech. They did not let me speak. Amit Shah got up. Prime Minister didn't allow me to speak. All the ministers were standing. Speaker stopped me again and again and again. For the first time in India's history, leader of opposition was not allowed to speak in the president's address. Never happened before. Why were they stopping me? Because they knew I was going to speak about the two issues that have trapped the Prime Minister of India. The first is 3.5 million Epstein files that have not yet been released. Please understand, there are 3.5 million files which are still held secret by the US government. These files have information about the Prime Minister of India. मध्य प्रदेश के बाद केरल से किसानों के हक की रक्षा के राहुल के आह्वान से जोश में आए राजस्थान कांग्रेस के विधायकों ने भी भारत अमेरिका ट्रेड डील के विरोध में प्रदर्शन किया। विधानसभा परिसर नरेंद्र सरेंडर के नारों से गूंज उठा। राजस्थान कांग्रेस विधायकों ने आरोप लगाया कि ट्रेड डील में मोदी सरकार ने किसानों के हक की बलि चढ़ा दी और देश के किसानों के साथ विश्वासघात किया है, जिसे किसान कभी माफ नहीं करेंगे। कांग्रेस के कार्यकर्ता किसानों के साथ खड़े, पहले भी लड़े थे, आज भी लड़ रहे हैं। सरकार जागे, इनको पता चले कि इन्होंने किस प्रकार से किसानों के हितों से खिलवाड़ किया है कि हमारे किसान के जो हित हैं, हक हैं, उनसे कंप्रोमाइज नहीं होना चाहिए। एप्स्टीन फाइल के कारण इतनी बड़ी कीमत देश को चुकानी पड़ रही है। हर क्षेत्र के अंदर, चाहे वो कृषि का क्षेत्र हो, रोजगार का क्षेत्र हो, डेटा का क्षेत्र हो, टेक्सटाइल इंडस्ट्री का क्षेत्र हो, हर क्षेत्र के अंदर इस देश को नरेंद्र मोदी जी ने सरेंडर कर दिया। राहुल और उनके कारकुनों की जबान से बार बार निकल रहे पीएम इज कॉम्प्रोमाइज्ड के नारे से बौखलाई बीजेपी हमेशा की तरह मीडिया के सामने आई, लेकिन ट्रेड डील पर सवालों के जवाब देने के बजाय इतिहास के पन्ने पलटने लगे। तकिया कलाम की तरह आधुनिक भारत के निर्माता और देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को कोसने लगे। चचा नेहरू बोला जाता था उनको, चचा नेहरू। ही वॉज कॉम्प्रोमाइज्ड नेहरू। चचा कॉम्प्रोमाइज्ड, वो चचा नेहरू नहीं थे, वो चचा कॉम्प्रोमाइज्ड थे। मुझे लगता है आज से उनको चचा कॉम्प्रोमाइज्ड के नाम से ही बोलना चाहिए। जब चचा ही कॉम्प्रोमाइज्ड होगा तो क्या देश का हाल होगा, आप सोचिए जरा। अब ये चचा कॉम्प्रोमाइज की पूरी कच्ची चिट्ठी है, बहुत बड़ी चिट्ठी है, कच्ची चिट्ठी। मैं प्रयास करता हूं कि एक एक करके इस विषय को रखूंगा। नेहरू जी प्रधानमंत्री नहीं है देश में। आज जो प्रधानमंत्री हम उससे सवाल पूछ रहे हैं। 1964 में जिनका देहांत हो गया उनसे सवाल पूछें, लेकिन जो आज प्रधानमंत्री है उनसे सवाल पूछो तो जेल हो जाती है। किसान, अग्निवीर जवान, पेपर लीक के शिकार नौजवान, जो सड़क पर आता है ये उसको अंदर कर देते हैं। क्यों? क्योंकि सड़क पर आकर आईना दिखाना नरेंद्र मोदी को, ये नरेंद्र मोदी को बर्दाश्त नहीं होता। नरेंद्र मोदी को समझ लेना चाहिए कि कोई भी तानाशाह ज्यादा दिन तक नहीं चलता।
कांग्रेस का सवाल सीधा है कि अगर प्रधानमंत्री कॉम्प्रोमाइज्ड नहीं हैं, तो फिर उन्हें साफ साफ बताना चाहिए कि ट्रेड डील अमेरिका की तरफ झुका हुआ क्यों? भारत का कृषि बाजार किसके दबाव में खोला गया और किसकी धमकी के कारण रूस से तेल खरीद कम कर दी गई? लेकिन इन सवालों के जवाब देने के बजाय वो सवाल पूछने वालों को कोसते हैं, प्रदर्शन करने वाले नौजवानों को जेल भेजते हैं। ये डर नहीं तो और क्या है? इन्हीं सवालों के साथ दिल्ली में भी यूथ कांग्रेस का प्रदर्शन हुआ। सवालों का सिलसिला नहीं थमा। यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं और नेताओं की गिरफ्तारी को लेकर राहुल गांधी ने एक बार फिर सत्ता को निशाना बनाया। आरोप ये कि कॉम्प्रोमाइज्ड प्रधानमंत्री ने शांतिपूर्ण प्रदर्शन को भी गुनाह बना दिया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर राहुल गांधी ने लिखा, आज भारत में कॉम्प्रोमाइज्ड पीएम के राज में शांतिपूर्ण विरोध करना ही सबसे बड़ा अपराध बना दिया गया है। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र को धीरे धीरे ऐसी दिशा में धकेला जा रहा है जहां असहमति को देशद्रोह और सवाल पूछने को साजिश बताया जाता है। सोचिए, मुद्दा कोई भी हो, अगर आप सत्ता के खिलाफ संवैधानिक तरीके से आवाज उठाते हैं तो लाठी, मुकदमा और जेल, ये लगभग तय। पेपर लीक से त्रस्त युवाओं ने अपने भविष्य के लिए आवाज उठाई, जवाब मिला लाठियों से। देश की गौरवशाली महिला पहलवानों ने बीजेपी के प्रभावशाली नेता पर लगे गंभीर आरोपों की निष्पक्ष जांच की मांग की। उनकी पुकार को बदनाम किया गया, आंदोलन को कुचला गया और उन्हें सड़कों से जबरन हटाया गया। एक बलात्कार पीड़िता के समर्थन में इंडिया गेट पर शांतिपूर्ण प्रदर्शन हुआ। न्याय की मांग को व्यवस्था के लिए असुविधा मानकर हटा दिया गया। युवा कांग्रेस ने देश का अहित करने वाले यूएस ट्रेड डील का शांतिपूर्ण विरोध किया तो उन्हें देश विरोधी बताकर गिरफ्तार कर लिया। जब आम लोग जहरीली हवा के खिलाफ खड़े हैं तो पर्यावरण की चिंता को भी राजनीति कहकर दबा दिया गया। जब किसानों ने अपने अधिकारों के लिए आंदोलन किया तो उन्हें देश विरोधी करार दिया गया। आंसू गैस, रबर की गोलियां, पानी की बौछारें और लाठियां, यही संवाद का माध्यम बना। जब आदिवासी अपने जल, जंगल और जमीन के हक के लिए खड़े हुए तो उन पर भी शक की नजर डाली गई, मानो अपने अधिकार मांगना अपराध हो। ये कैसा लोकतंत्र है जहां कॉम्प्रोमाइज्ड पीएम सवालों से डरते हैं, जहां असहमति को कुचलना शासन का स्वभाव बनता जा रहा है। शांतिपूर्ण विरोध अपराध नहीं, लोकतंत्र की आत्मा है। सवाल पूछना लोकतंत्र की कमजोरी नहीं, उसकी ताकत है। लोकतंत्र तब मजबूत होता है जब सरकार आलोचना सुनती है, जवाब देती है और जवाबदेह रहती। मोदी जी, ये नॉर्थ कोरिया नहीं, भारत है। जब सत्ता खुद को राष्ट्र समझने लगे और असहमति को दुश्मन, तब लोकतंत्र मर जाता है। हालांकि बीजेपी अब भी यह साबित करने की कोशिश कर रही है कि एआई समिट में हुआ प्रदर्शन किसी साजिश का नतीजा था, लेकिन कांग्रेस ने कहा कि देश के बच्चे भी बीजेपी की इन बातों पर हंस रहे हैं। आखिर ये लोकतंत्र को किस रसातल की तरफ ले जा रहे हैं? हमने देखा कि उसके पीछे एक बहुत सोचा समझा प्लान्ड अरेंजमेंट था। सोशल मीडिया में भी हमने देखा कि रील्स चल रही है और लोगों ने बकायदा ट्वीट करके रील्स के माध्यम से यह बताया है कि उन्हें कांग्रेस कार्यालय से और कांग्रेस के बड़े लोगों का मैसेज आया था। कानूनी तरीके से भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों की पुलिस जाती है, लोगों को उठाकर ले आती है। मेरे साथ भी असम पुलिस ने कोशिश की, सुप्रीम कोर्ट ने आकर मुझे बचाया। ये हर बार ये हमारे श्रीनिवास जी के साथ हुई, हमारे जिग्नेश मेवानी जी के साथ हुई। तो ये गैरकानूनी तरीके से जिस तरह से राज्यों की पुलिस का इस्तेमाल किया जा रहा है, ये संविधान के खिलाफ है। बीजेपी के मुताबिक राहुल गांधी दिन रात साजिश ही रचते रहते हैं, अपने कार्यकर्ताओं से देश विरोधी काम करने को कहते हैं। लेकिन केरल से राहुल गांधी की ये बातें सुनने के बाद आप भी कहेंगे कि ये बीजेपी वाले कैसी बातें करते हैं। You know, our brothers and sisters, they fight sometimes about silly things. So yesterday I said something silly, so she got upset. So she was not talking to me yesterday. You understand? So then I went to see my mother, and I told my mother, my mother said, because my mother was there during the fight, my mother said, so how's your sister? So she said, I told my mother, no, my sister's upset with me, so she's not talking to me. Then I told my mother, I have trapped my sister because tomorrow she's going to Wayanad and she cannot be angry with me anymore. So this morning, when we got in the plane, I said hello to her. She had a long face. But the moment we landed in Wayanad, she started smiling and talking to me as normal. Please understand, that is the magic of the people of Wayanad. तो बीजेपी चाहे जो भी कह ले,
राहुल पर इल्जाम लगाए यूथ कांग्रेस के नौजवानों को जेल भेज दे, लेकिन इससे सत्ता की राह आसान नहीं होती है। जनता कांग्रेस के साथ जुड़ती चली जाती है, कांग्रेसियों का हौसला और भी बुलंद होता जाता है। यही तो राहुल की रीत है, डर के आगे जीत है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।